السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی اور پرائم ٹائم نیوز بلیٹن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی مساجد میں روح پرور مناظر۔ حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کی مسجدوں میں پہلی تراویح کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام۔ حکومت و اقلیتی کمیشن کی جانب سے محبوب نگر میں کئی فلاحی اسکیمات کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ایم ایل سی عامر علی خان نے کی شرکت۔ کانگریس کو اقلیتوں کا مسیحا قرار دیا۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے سالانہ امتحانات کے دوران سخت اقدامات کا کیا اعلان۔ امتحانی مراکز کے دروازے امتحان سے 15 منٹ پہلے بند کرنے کا فیصلہ۔ ضمنی انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں، کے ٹی آر کا کیڈر کو مشورہ۔ کہا بہت جلد ریاست کے 10 اسمبلی حلقوں پر ہوں گے ضمنی انتخابات۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں گرمی اور لو کی شدت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان۔ اپریل اور مئی کے مہینوں میں درجہ حرارت 44 تا 46 ڈگری پہنچ جائے گا، محکمہ موسمیات کا انتباہ۔ 4 رکنی گینگ نے صرف 4 منٹ میں ایک اے ٹی ایم سے 30 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ مہیشورم کے رووریلا گاؤں میں واقع ایس بی آئی اے ٹی ایم میں پیش آیا واقعہ۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف 10 مارچ کو پورے ملک میں کیا جائے گا احتجاج، مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان۔ اور اتراکھنڈ میں راحت کاری جاری، 50 افراد کو بچا لیا گیا، 4 افراد کے مرنے کی تصدیق، کئی افراد ہنوز لاپتہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ریاست تلنگانہ اور دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں ماہ مقدس ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی مساجد میں ماہ مقدس کی خصوصی عبادت یعنی کہ تراویح کا آغاز ہو گیا ہے۔ اہم تاریخی مساجد جیسے کہ مکہ مسجد، شاہی مسجد باغ عامہ، مسجد وزیر علی و دیگر مساجد میں تراویح کے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ اضلاع کی بھی تمام مساجد میں کچھ ایسے ہی مناظر تھے۔ پیش ناظرین اہم تر تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ریاست تلنگانہ اور دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں رمضان کی رویت کی اطلاعات کی توثیق کے بعد ہی ماہ مقدس صیام کا آغاز ہو گیا۔ بعد مغرب دونوں شہروں میں رمضان کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ ماہ صیام یا رمضان ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور اسے قمری تقویم بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے پورے روزے بھی فرض قرار دیے ہیں۔ رمضان مسلمان زیادہ تر وقت تلاوت قرآن پاک، عبادتوں اور ذکر اذکار میں گزارتے ہیں۔ غیبت، چغلخوری اور دیگر گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی دونوں شہروں کی مساجد مصلیوں سے بھر گئی اور نماز عشاء کے بعد صلاۃ تراویح کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شہر کی چند اہم تاریخی مساجد جیسے کہ مکہ مسجد، شاہی مسجد باغ عامہ، مسجد وزیر علی، جامع مسجد چامینار، جامع مسجد افضل گنج، جامع مسجد ملے پلی، مسجد عزیزیہ ہمایوں نگر، جامع مسجد مشیر آباد، جامع مسجد ایوان بیگم پیٹ اور دیگر مساجد میں تراویح کے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ تراویح میں مصلیوں کی سب سے زیادہ تعداد مکہ مسجد میں دیکھی گئی۔ شہر میں اپارٹمنٹس، فنکشن ہالز، دینی مدارس، گراؤنڈز پر بھی تراویح کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین کے لیے علیحدہ نظم کیا گیا۔ سحری کے پکوان کے لیے سبزیوں اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے دکانات پر ہجوم دیکھا گیا۔ صحت کے ماہرین نے روزے داروں پر زور دیا کہ وہ رمضان کے دوران مناسب خوراک کا بھی خیال رکھیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی، حیدرآباد۔ ریاستی اقلیتی کمیشن اور حکومت کے تعاون سے اقلیتوں کی ترقی و فلاح بہبود کے لیے مختلف اسکیمات کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محبوب نگر کے ونپٹی میں اقلیتی قائدین کے ہمراہ مستحق خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر کمیشن کے سربراہ عبید اللہ کوتوال، رکن خانہ ساز کونسل عامر علی خان اور محبوب نگر کے اقلیتی کانگریسی قائدین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جناب عامر علی خان نے کانگریس حکومت کو اقلیتوں کا مسیحا قرار دیا۔
इंटरमीडिएट बोर्ड ने सालाना इम्तिहानात के दौरान सख्त इकदाम का ऐलान करते हुए इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजे इम्तिहान से 15 मिनट पहले बंद करने का फैसला किया। सुबह 8:45 बजे के बाद किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहानी मरकज में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात में तलबा को सुबह 8:30 बजे तक इम्तिहानी हाल में मौजूद रहने की सख्त हिदायत दे दी गई हैं। इससे पहले कुछ मिनट की ताक़ीब पर नरमी दी जाती थी, लेकिन 2024 में आदिलाबाद जिले में एक तालिब इल्म की खुदकुशी के बाद हुकूमत ने 5 मिनट की रियायत भी दी थी। ताहम इस बार हुकूमत ने सख्त रवैया अपनाया और इम्तिहान से 15 मिनट पहले ही दरवाजे बंद करने का उसूल नाफिज कर दिया। वाज़ेह है कि रियासत में 5 मार्च से 25 मार्च तक इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी केडर को मशवरा दिया कि वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द रियासत के 10 असम्बली हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। केटीआर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, बीआरएस के 10 अरकान असम्बली ने पार्टी से बेवफाई करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके खिलाफ बीआरएस पार्टी कानूनी कार्रवाई कर रही है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि वो मुनहरिफ कानून के तहत कार्रवाई करते हुए पार्टी से बेवफाई करने वाले 10 अरकान असम्बली की रुकनियत खत्म कर देगी। केटीआर ने इस मौके पर चीफ मिनिस्टर पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि रियासत में उनका नज्म नस्ब पर कंट्रोल खत्म हो गया है। रियासत के बेशतर हिस्सों में माह मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी और लू की शिद्दत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इस बात का इजहार किया। अप्रैल और मई के महीनों में दर्जे हरारत 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। सन 1901 से 2025 यानी कि 125 सालों तक के औसत दर्जे हरारत का तज्जिया करने पर पता चला है कि जाया साल गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। खासतौर पर जुनूबी और वस्ती तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद के मज़ाफ़ात इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड होने का इम्कान है। कांग्रेस के कुन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार करते हुए माह रमज़ान के आगाज के मौके पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए हाफ डे स्कूल चलाने का फैसला किया। इसी सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। पीर से उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक औकातकार में तालीम दी जाएगी और ये अहकाम आइंदा माह 1 अप्रैल तक जारी रहेंगे। उर्दू टीचर्स की मुख्तलिफ तंजीमों और सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों में बरसरकार असातिज़ा की नुमाइंदगियाँ वसूल होने के बाद जनाब आमिर खान ने इस सिलसिले में कमिश्नर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को मकतूब रवाना किया था। शहर में रमजान की आमद के साथ साथ ही बाजारों में रौनक दुबाला हो गई है। गुज़िश्ता शब पहली सहरी के एहतमाम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में बाजारों में हुजूम देखा गया। इफ्तार और सहर के एहतमाम के लिए शहर के बाजारों में लोग उमड़ पड़े थे, तो दूसरी जानिब खजूर की खरीदारी के लिए भी खजूर और ड्राई फ्रूट्स की दुकानात में अवाम का हुजूम था और इसके नतीजे में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम के मनाजिर देखने में आए। मेहदीपट्टनम, टोरी चौकी, मीरालम मंडी, चामीना, शालीबंडा, किलवत, फलकनुमा, शाहौस होटल और दीगर इलाकों में खासकर किराना की दुकानात में जबरदस्त हुजूम देखा गया। अवाम की बड़ी तादाद बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी थी। 4 रुकनी गैंग ने सिर्फ 4 मिनट में एटीएम से 30 लाख रुपए लूट लिए। इतलात के मुताबिक ये वाकया महेश्वरम के रोविला गांव में वाक़ एसबीआई एटीएम में पेश आया। सीसीटीवी फुटेजेस में 4 अफराद को एटीएम सेंटर के करीब आते देखा जा सकता है। सारिकीन की 4 रुकनी टोले ने हफ्ते की रात महेश्वरम में एटीएम सेंटर में घुसकर 30 लाख रुपए की नकदी लूट ली। ये वाकया महेश्वरम के रोविला गांव में वाक़ एसबीआई एटीएम में पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में 4 आदमी एटीएम सेंटर के करीब पहुंच गए थे। इनमें से 2 मरकज में दाखिल हो गए, नकदी तकसीम करने वाली मशीन को कामयाबी के साथ खोला और फिर मुख्तलिफ करेंसी नोटों में नकदी जमा कर ली। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। और इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि इस बिल के खिलाफ 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। इस मुजाहरे के जरिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी ताकि इस बिल को वापस लिया जाए। AIMPLB ने अपोजिशन और सिविल सोसाइटी से भी इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की है।
बोर्ड के तर्जुमान और एहतजाज के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद कासिम रसू इलियास ने कहा, मुस्लिम पसल्ला बोर्ड मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम कम्यूनिटी ने कई मौके पर मरकजी हुकूमत और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा, हुकूमत की जानिब से पेश किया गया ये वक्फ तरमीम बिल वक्फ अमलाक को हथियाने और तबाह करने की साजिश है, जिसे फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रमजान पर अपने हमवतनों को मुबारकबादी दी और सबकी भलाई के लिए दुआ मांगी। खड़गे ने कहा, रमजान शुरू हो गया है, हम सब भी दुआ, माफ़ी और दूसरों की खिदमत के अज़्म के लिए नए सिरे से आशीर्वाद के तौर पर इस मुक़द्दस महीने को अपनाएं। आइए हम अपनी बरदरियों में हमदर्दी, अमन और हम आहंगी फैलाने की कोशिश करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पैसों के लालच में नौजवानों को मुनशियात की तारीख खाई में धकेलने वाली मुनशियात के स्मगलरों को सजा देने में मोदी हुकूमत कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मिस्टर शाह ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, हुकूमत का अज़्म मुनशियात से पाक हिंदुस्तान की तामीर के लिए सख्त और मोहतात जांच पड़ताल के साथ मुनशियात की लानत से लड़ना है। उन्होंने कहा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक तहकीकात की बेऐब हिकमत अमली के नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में 12 मुख्तलिफ खदमात में अदालतों के जरिए 29 मुनशियात के स्मगलरों को कसूरवार ठहराया गया है। इससे पहले अमित शाह ने मणिपुर की सूरत हाल पर भी जायजा इजलास मुनक्किद किया। बद्रीनाथ में राहत और बचाव मुहिम फिर से शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर इलाकों में आज भी तलाशी मुहिम के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैयार है। 28 फरवरी को जोशीमठ के माना गांव के पास BRO कैंप में हुए जमीन खिसकने के बाद से ही फिजाइया का चीता हेलीकॉप्टर चमोली के इलाके में राहत और बचाव काम में लगा हुआ है। हुकाम ने कहा कि मौसम ने हमारा साथ दिया। कल 54 BRO मुलाजिमीन लापता हो गए थे, इनमें से 50 को बचा लिया गया है। 4 लोगों की जानें चली गई हैं, वहीं 4 लोग अभी भी लापता है। उनकी तलाशी के लिए बचाव मुहिम चल रही है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द इनका पता लगा लेंगे। जख्मी BRO मुलाजिमीन को आगे मजीद इलाज के लिए जोशीमठ आर्मी अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है। बर्फानी तोदों की जद में आकर मुतासिर होने वाले वर्कर्स में से कई जख्मियों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतासिर ने इस दिल दहला देने वाक़े के बारे में अपने तजुबात का इजहार किया। उन्होंने कहा, पहाड़ की चोटी से बर्फ के तोदे खिसकने का वाक़या इंतहाई खौफनाक था और इस वाक़े को शायद ही कभी भुला पाएंगे। ना अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के आया। ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। तो कितने घंटे आप बर्फ के नीचे रहे थे? घंटे नहीं रहे हम तो, मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए। सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। कुछ लोग आर्मी कैंप गए, कुछ लोग वहीं दबे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं कैसे क्या। टोटल 54-55 लोग थे हम टोटल। तो उस दौरान आप लोग काम कर रहे थे या? नहीं, सुबह के टाइम बर्फ गिर रहे थे, 1-1.5 मीटर बर्फ गिरी थी। तो इस टाइम बर्फ गिरी थी तो कोई बाहर आने का तो मतलब ही नहीं था, कहाँ रहना था बाहर। हमारे पे आसियाना वही था कि अपने रूमों में जो भी है। कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। तो कितने लोग थे आप कंटेनर के अंदर? हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। तो बर्फ के नीचे आप लोग दबे रहे कंटेनर? कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब जी। तो रेस्क्यू अभियान कितनी देर बाद चला, कितनी देर आप रहे कंटेनर पर? वो पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल BRO कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके BRO कैंप पहुँचे। कुल कितने लोग थे? हम एक साथ 23 बंदा पहुँचे BRO कैंप जी। अभी कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 6-7 बंदा लापता। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
माह रमजान के आगाज के साथ ही मसाजिद में रूह परवर मनाजिर। हैदराबाद और रियासत तेलंगाना की मस्जिदों में पहली तरावी का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम। हुकूमत और अक़लियती कमीशन की जानिब से महबूब नगर में कई फलाही स्कीमात का आगाज। वजीर आला रेवंत रेड्डी और MLC आमिर अली खान ने की शिरकत। कांग्रेस को अक़लियतों का मसीहा करार दिया। इंटरमीडिएट बोर्ड ने सालाना इम्तिहानात के दौरान सख्त इक़दामात का किया ऐलान। इम्तिहानी मराकिज़ के दरवाजे इम्तिहान से 15 मिनट पहले बंद करने का फैसला। ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए तैयार हो जाएं, KTR का केडर को मशवरा। कहा बहुत जल्द रियासत के 10 असेंबली हलकों पर होंगे ज़िमनी इंतख़ाबात। रियासत के बेशतर हिस्सों में गर्मी और लू की शिद्दत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। अप्रैल और मई के महीनों में दर्जे हरारत 44 से 46 डिग्री पहुंच जाएगा। महकमे मौसमियात का इंतबाह। 4 रुकनी गैंग ने सिर्फ 4 मिनट में एक ATM से 30 लाख रुपए लूट लिए। महेश्वरम के रोवरेला गांव में वाक़ SBI ATM में पेश आया वाक़या। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 10 मार्च को पूरे मुल्क में किया जाएगा एहतजाज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। और उत्तराखंड में राहत कार्य जारी। 50 अफराद को बचा लिया गया। 4 अफराद के मरने की तस्दीक। कई अफराद हुनूर लापता। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।